Machephy Eduworld. It opposes relative motion. पहला है friction opposes relative motion. Second property is that friction लगता है friction depends on normal force. जितना ज्यादा normal force उतना ज्यादा friction. It depends on the value of the normal force. The friction depends on the normal force. And the third thing is that friction is a self-adjusting force. Means जितना required है उतना ही लगेगा. Friction is a self-adjusting force. So these three things याद रखना. So अभी static friction पे ही problem करते हैं. Static friction तब लगता है जब object rest में रहता है relative to the other surface. ठीक है. और kinetic friction तब लगता है जब object move कर रहा हो. एक क्वेश्चन और करते हैं. So there are two blocks. तो इसका मास है 2 kg, इसका मास है 3 kg. और मैंने फोर्स लगाया. Here the value of the force is 10 Newton. यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन इन दोनों सरफेस के बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन गिवन है एंड उसकी वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू है 0.3 और यहाँ पे स्मूथ है सरफेस. So find acceleration of the blocks, find acceleration of the blocks and frictional force between the surfaces. Frictional force between the masses. Frictional force between the masses. एक ये क्वेश्चन सॉल्व करना है एंड इसी के सिमिलर दूसरा क्वेश्चन है. बट यहाँ पे फोर्स ऊपर वाले पे लग रहे हैं. In this case also you have to find the acceleration and frictional force between the surface, between the masses. So let us say the force is 15 Newton. Force is 15 Newton. Okay, solve this. I'll be back in 5 minutes. दोनों क्वेश्चन सॉल्व करना है, एफपीडी ड्रॉ करना है हर किसी को, and then you have to send it on WhatsApp group. Students जो एफपीडी ड्रॉ करके सेंड नहीं कर रहे हैं, they will be removed out of the class. Only Nirmit and Naman have sent me the FPDs. बाकी स्टूडेंट्स ने सेंड नहीं किया है. भारवी, वैष्णवी, अर्जुन, send it quickly. भारवी, फर्स्ट केस में फ्रिक्शन फोर्स कितना आ रहा है? Sir, 6 Newton. 6 Newton. And acceleration? 3 kg वाले ब्लॉक का 4/3 meters per second पर. और 2 kg वाले ब्लॉक का? 2 kg का 0 होगा ना? 2 kg पे फ्रिक्शन तो लगाएगा 3 kg वाला.
Or you haven't sent me the FPD? No, you have sent it. Vaishnavi and Arjun, you have not sent me the FPD. Sir, एक minute. I made it wrong way. You're doing what? Sir, मैं भेज रहा हूँ अभी. Okay, you've done it, no? Yes, sir. Yeah. Don't take much time. And Vaishnavi, what about you? Okay. ठीक है. So only Arjun is left. So see here. तो पहले 2 kg वाले ब्लॉक का FPD बनाते हैं. Watch it carefully. For this question, of course. तो 2 kg वाले ब्लॉक पे mg लगेगा नीचे and normal force लगेगा ऊपर. Call this is N1. Frictional force will be there to oppose the external force. The external force लग रहा है 10 Newton. Okay. And 3 kg वाला ब्लॉक चाहेगा कि 2 kg वाला ब्लॉक मूव ना करे. तो 3 kg वाला ब्लॉक 2 kg वाले ब्लॉक पे फोर्स लगाएगा in the backward direction. This will be the friction force. So no force तो 3 kg वाले ब्लॉक पे लग रहा है. First, let me draw the FBD of this 3 kg block. So here the external force is 10 Newton. ऊपर वाले ब्लॉक की वजह से let us say N1 force लग रहे. नीचे वाला ब्लॉक again mg is 30 and ऊपर जो normal force लगेगा that is N2. And here 20 downward और N1 upward. External force जो लग रहा है वो नीचे वाले ब्लॉक पे लग रहा है. So ऊपर वाला ब्लॉक चाहेगा कि नीचे वाला ब्लॉक साथ साथ मूव करे या आगे ना जाए. Okay, so for that जो ऊपर वाला ब्लॉक है that will apply a frictional force of let us say small f on the upper surface of the lower block. ये वाला सरफेस स्मूथ है तो इसकी वजह से कोई भी फ्रिक्शन नहीं आएगा. Also the smaller block पे bigger block चाहता है कि smaller block साथ साथ जाए because friction doesn't want the relative motion to happen. So that will mean on the lower surface of the block there will be a friction in the forward direction. And I have to check whether the friction is sufficient or not. I have to check whether the friction is sufficient or not. So for that, what I will do, I will say ki, let us say, I will assume. First thing is that Arjun, you still haven't sent me the FPD. Sir, भेजा. Where? On which group? Sir, आपको भेजा. Yeah, I got it. FBT तो ड्रॉ ही नहीं किया, इसमें सिर्फ क्वेश्चन लिखा हुआ है. Just learn how I'm drawing the FBD. FBD में बॉडी को फ्री करते हैं. Yes, sir. To separate the individual blocks and then draw the fluid diagram. So here you have to assume in this question, let us assume that acceleration is same. अगर acceleration same होता है, in that case the blocks will move together. That means blocks will move together. Blocks will move together. और जब blocks साथ साथ move करेंगे, that means there is no relative motion. So static friction will act.
स्टैटिक फ्रिक्शन विल एक्ट। अगर दोनों का एक्सेलरेशन सेम है तो स्टैटिक फ्रिक्शन विल एक्ट। तो इस assumption से if you are getting all the situations right, then our answer will be correct. तो अगर दोनों ब्लॉक साथ साथ जा रहे हैं तो दोनों का एफबीडी साथ में अगर बना लिया तो एक्सेलरेशन कितना आना चाहिए? नीचे कोई सरफेस, नीचे कोई फ्रिक्शन नहीं है, so this F will be responsible for total mass m1 plus m2 into acceleration. तो एक्सेलरेशन आना चाहिए 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अगर दोनों ब्लॉक साथ साथ जा रहे हैं तब। तो फ्रिक्शन की वजह से ऊपर वाला ब्लॉक जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से और नीचे वाला ब्लॉक भी जाएगा राइट डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। सो यहां से अगर हम कैलकुलेट करें, यहां से F आ जाएगा, दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन 2 into A। 4 न्यूटन लगना चाहिए फ्रिक्शन, इतना रिक्वायर्ड है। दिस इज योर स्टैटिक फ्रिक्शन, नॉट द काइनेटिक फ्रिक्शन। और इस केस में F minus Fs, this should be equal to 3A. So this is 10 and Fs यहाँ पे 4 था तो यहाँ पे भी 4 ही होना चाहिए। Let us say if it satisfies the value of acceleration or not, है ना? या फ्रिक्शन Fs यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं। Fs यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो 3 into 2 that is 6। यहाँ से भी Fs की वैल्यू 4 न्यूटन आ रही है। So ये Fs और ये Fs मैच कर रहा है, that means static friction will act. Also there is another thing, that is क्या ये Fs maximum static friction से कम है? Then only this is possible. So for that you have to calculate Fs max. So Fs max क्या होगा? That is mu s times the normal force. But normal force कौन सा? किस normal force की वजह से फ्रिक्शन लग रहा है? So ये वाले सरफेस पे लग रहा है नॉर्मल फोर्स, इस वाले सरफेस पे ही फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। तो इस वाले सरफेस पे कितना नॉर्मल फोर्स है? दैट इज योर N1। इस वाले सरफेस पे नॉर्मल फोर्स दैट इज N1। सो हियर यू विल राइट US into N1, दैट इज 0.3 into N1 की वैल्यू कितनी है? दैट इज 20। सो दिस इज 6 न्यूटन। सो since Fs is less than Fs max, then this assumption was true और दोनों ब्लॉक साथ साथ मूव करेंगे, जिससे फ्रिक्शन की वैल्यू है 4 न्यूटन। मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू 6 न्यूटन, दैट यू हैव कैलकुलेटेड करेक्ट। बट यहाँ पे कितना फ्रिक्शन लगेगा? दैट विल बी जस्ट 4 न्यूटन। 4 न्यूटन फ्रिक्शन लगाने से दोनों का एक्सेलरेशन सेम हो जाए। बट दोनों का एक्सेलरेशन सेम कैसे होगा? दैट इज व्हाट वी हैव अज्यूम्ड ना, एक्सेलरेशन सेम करके हमने कैलकुलेट किया और फ्रिक्शन की वैल्यू इतनी आ रही है। अगर दूसरी तरह से सॉल्व करें, बस एक्सेलरेशन सेम अज्यूम किया, okay, and then we are calculating the friction force and acceleration, तो वो भी कर सकते हैं। लेट अस से एक्सेलरेशन पता नहीं है, दोनों ब्लॉक साथ साथ जा रहे हैं, so we can write 10 minus Fs, that is equal to 3 into acceleration, and Fs is equal to 2 of acceleration। तो ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो यहाँ से Fs आ जाएगा अगेन 6 न्यूटन और एक्सेलरेशन आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन का तो कोई इशू नहीं है, बट फ्रिक्शन जो है, नो, फ्रिक्शन आएगा यहाँ पे 4 न्यूटन, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो ये फ्रिक्शन 4 न्यूटन 6 से कम होना चाहिए। 6 से कम है, दैट मीन्स दोनों ब्लॉक साथ साथ जाएंगे, तभी स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। सर वो फर्स्ट इक्वेशन में मास को 5 kg नहीं लेना? नहीं, मास तो 3 kg है ना। बट N1 भी लग रहा है ना? नहीं, N1 से मास चेंज नहीं होता। न्यूटन सेकंड लॉ इज जस्ट मास, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन।
तो बिकॉज वी हैव मेड दिस असम्पशन कि एक्सेलरेशन सेम है और उससे हमारा जो फ्रिक्शन आ रहा है दैट इज लेस देन मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, दैट इज द प्रूफ दैट आवर assumption was correct. दोनों ब्लॉक साथ साथ जाएंगे और फ्रिक्शन विल बी ओनली 4 न्यूटन. फ्रिक्शन की वैल्यू इज 4 न्यूटन एंड एक्सेलरेशन की वैल्यू इज 2 मीटर पर सेकंड. These are the values. Arjun, is this clear to you? यस सर. नेक्स्ट वाले का फ्री बॉडी डायग्राम बन जाएगा. हाँ सर. Okay. So draw the free body diagram of the next one. Solve it and send it to me. इस तरह के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे. Kinetic friction will be taking it up in the next class, but अभी आज सिर्फ static friction की बात करेंगे जब relative motion ना हो रहा हो. Any other questions? इस केस में भी सेम पहले अज्यूम कर लेना कि एक्सेलरेशन सेम होगा, कितना फ्रिक्शन रिक्वायर्ड है उसके बाद, एंड देन दैट विल कैलकुलेट कि मैक्सिमम फ्रिक्शन से कम है या नहीं. सर या सर अगर स्टैटिक फ्रिक्शन होता है तो एक्सेलरेशन दोनों ब्लॉक्स का सेम होता है. सी करेक्ट वर्ड वुड बी कि जब स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है मतलब स्टैटिक्स वाला केस है, मींस रिलेटिव मोशन जीरो होगा, एंड यस योर स्टेटमेंट इज देन राइट, तो एक्सेलरेशन सेम होगा, है ना. बट रिलेटिव मोशन ना होने का रीजन होता है कि वेलोसिटी ना हो, रिलेटिव वेलोसिटी ना हो. तो ऐसे केसेस पॉसिबल है कि एक्सेलरेशन सेम है बट वेलोसिटी डिफरेंट होने की वजह से स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं लग रहा है. तो इसलिए मैंने कंडीशंस हमेशा बेसिक कंडीशन से लिखना है कि स्टैटिक होना चाहिए, दैट मींस रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए, रिलेटिव एक्सेलरेशन, रिलेटिव वेलोसिटी नहीं होना चाहिए, एंड ऑफ कोर्स इस केस में दोनों रेस्ट से स्टार्ट हो रहे हैं तो रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो होना चाहिए, दैट इज एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा है रिलेटिव मोशन नहीं होगा ये एज्यूम करना पड़ेगा. रिलेटिव मोशन ना हो तो एक्सेलरेशन सेम हो, बिकॉज दोनों रेस्ट में रहेगा, एक्सेलरेशन सेम है तो रिलेटिव वेलोसिटी सेम रहेगी. ओके, इसके बाद हम एफबीडी ड्रॉ करते हैं, एफएस मैक्स कितना रिक्वायर्ड है वो कैलकुलेट करते हैं. I joined by mobile data, there's power cut, so if the voice fluctuates then just केजी वाले ब्लॉक का एफबीडी. सो नमन टेल मी फ्री बॉडी डायग्राम कैसे कैसे लिखेंगे. सर मैंने आपको शेयर किया है. हाँ, तो सर नीचे लग जाएगा हमारा 2 kg वाले ब्लॉक के लिए 20 न्यूटन, हाँ, और जो आपने अभी किया, और ऊपर नॉर्मल, और नॉर्मल, राइट साइड पे एक्सटर्नल फोर्स लगेगा या 16. और फ्रिक्शन लगेगा या नहीं लगेगा. सर फ्रिक्शन नीचे वाले ब्लॉक पे लगेगा ना. फ्रिक्शन नीचे वाले ब्लॉक पे लगेगा, बट कौन लगा रहा है फ्रिक्शन नीचे वाले ब्लॉक पे. सर अभी फर्स्ट वाला ब्लॉक, फर्स्ट उसके वाला, ऊपर वाला ब्लॉक. तो अगर नीचे वाले ब्लॉक ने ऊपर वाले ब्लॉक ने नीचे वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शन लगाया तो नीचे वाला ब्लॉक भी ऊपर वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शन लगाएगा, हाँ सर लगाएगा. बिकॉज एक्शन न्यूटन्स थर्ड लॉ, एक्शन रिएक्शन फोर्स, हाँ है ना. तो अच्छा, 3 kg वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शन किधर लगेगा. तो 3 kg वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शन लेफ्ट साइड पे लगेगा. लेफ्ट साइड में. अच्छा, 2 kg वाला ब्लॉक किधर मूव करना चाहता है. सर वो राइट साइड में मूव करना चाहता है. राइट साइड में मूव करना चाहता है, तो 3 kg वाला ब्लॉक क्या चाहेगा, वो रुके या और तेज जाए. सर वो आगे जाना चाहता है. 3 kg वाला आगे जाना चाहता है ना. हाँ तो 3 kg वाला अगर आगे जाना चाहेगा तो फ्रिक्शनल फोर्स इस पे आगे लगेगा ना, फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से आगे जाएगा ये. और कोई फोर्स तो है नहीं इस वजह से आगे जा सकते, फ्रिक्शनल फोर्सेस को आगे ले जा सकते हैं.
हाँ, ठीक है, तो 2 kg वाले ने 3 kg वाले ब्लॉक पे आगे फ्रिक्शन लगाया, तो 3 kg वाला ब्लॉक 2 kg वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शन लगाएगा पीछे पीछे को की डायरेक्शन। लगाया। और अज्यूम कर रहे हैं कि दोनों का एक्सेलरेशन सेम है, assuming no relative motion, that is static friction will act. So इस पे Fs फोर्स लगाया, इस पे Fs फोर्स लगाया, Fs ही लिख रहे हैं और दोनों का एक्सेलरेशन सेम मान लेते हैं और फिर फ्रिक्शनल फोर्स कितना रिक्वायर्ड है वो कैलकुलेट करते हैं। F माइनस Fs आ जाएगा यहाँ पे 2a और Fs आ जाएगा 3a, और जो Fs मैक्स है वो कितना होना चाहिए? सर 6N। 6 न्यूटन या 0.3 इंटू नॉर्मल फोर्सेस हाँ 2, तो 6 न्यूटन। ठीक है, इतना, इससे कम होना चाहिए फ्रिक्शन, तो कैलकुलेट कर लेते हैं। F की वैल्यू 15 है। अच्छा, सॉल्व इट एंड टेल में कितना आ रहा है। सर, एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया। एक्सेलरेशन कितना है? 3। 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और फ्रिक्शन कितना आ रहा है? फ्रिक्शन तो सर सेम आ रहा है, 6 न्यूटन। ओके, फ्रिक्शन दोनों में 6 आ जाएगा। स्टैटिक फ्रिक्शन अगर कैलकुलेट करेंगे यहाँ से दोनों को सॉल्व करके, तो 9 आ जाएगा ना। सर आप सॉल्व करके बता दो सर। अरे, एक्सेलरेशन 3 मीटर पर ये सेकंड सर, स्क्वायर कैलकुलेट किया, राइट? हाँ सर ये तो हो गया। तो एक्सेलरेशन को यहाँ पे पुट करेंगे, 3 इंटू 3 9 आ जाएगा। अच्छा हाँ सर, हाँ सर ठीक हाँ, है। बट 9 न्यूटन पॉसिबल है क्या? 9 न्यूटन पॉसिबल है? नहीं सर। मैक्सिमम 6 न्यूटन हो सकता है, 9 न्यूटन पॉसिबल नहीं है। हाँ सर, पॉसिबल नहीं है। नहीं है, सो दोनों का एक्सेलरेशन सेम नहीं होगा, सो हमारा assumption was wrong. So our assumption was wrong that both blocks will move together. हाँ ठीक है, so both blocks will then have different accelerations. So we conclude that both blocks will have different accelerations. अच्छा, जब स्टैटिक वाला केस नहीं है, in that case we define kinetic friction. ठीक है, जब स्टैटिक्स ना हो, बस दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग हो, then in that case we write that kinetic friction will act. So let me say कि mu k, that is kinetic friction, the value of the coefficient of kinetic friction is 0.2. Mu k is 0.2 for this surface, of course. So now in this case, for the same question, acceleration of the both blocks, that will be different. So we are going for kinetic friction, तो सेम ब्लॉक है, बट हमने कैलकुलेट किया कि दोनों ब्लॉक साथ साथ नहीं जा सकते because the static friction is not sufficient, and due to this now static friction नहीं लगेगा, we will have kinetic friction here. Instead of Fs there will be Fk, and the accelerations will be different. We'll call this acceleration as A1, call this acceleration as A2.
10, huh? Okay, this question. Yeah, 15 Newton. Let us say in second question, the coefficient of kinetic friction, that is mu k, value is given as 0.2. So instead of Fs, Fk will act. Fk is the kinetic friction. So the value of the kinetic friction will be same for both cases. And that is why, of course, because you know that forces always occur in pair, and these frictional forces will be a couple, that is an action reaction pair. So let me write this acceleration as A1 and this acceleration as A2. And if you calculate the coefficient of the value of kinetic friction, so Fk is just equal to mu k, and Fk vary नहीं करता. एक बार block start हो जाता है किसी motion से, किसी acceleration से, the value of frictional force does not changes, and that is called the kinetic friction, and it remains constant. It only depends on the normal force. It does not depends upon the external force. अगर relative motion है तो kinetic friction की value will be constant. So Naman, what will be the value of kinetic friction here? Tell me Fk कितना होगा? Naman, can you hear me? Yes, sir. Yeah. What will be the value of kinetic friction? Mu k is? UK is 0.2. And normal forces? Normal force is 20 20. for 2 Because kg block. 20. Not, yeah. इस surface पे लग रहा है. इस surface में normal force है 20. So we'll use 20. That is 10 Newton. After this, we can write the formula. F minus Fk is equal to 2A1 and Fk is equal to 3A1. F is given to you as 15 Newton. So 15 minus 10 is equal to 2A1 आ जाएगा, and Fk 10 is equal to 3. So A1 is coming as 5/2 meter per Sir, second square. FK 4 होगा ना? Fk, yeah, the calculation mistake. There should be 4 Newton only. So that will come as 11/2 now. And this is 4 equals to 3A2. So acceleration 2 is 4/3 meter per second square. All students have to send the FBDs after you have drawn them. It doesn't matter whether you have done the calculation or not. But FBD bana liya, then you have to send it. That is the first important step. Arjun, you are not sending any proper FBDs. सर मैं भेजता हूँ अभी इस क्वेश्चन में. Yeah, sure. So this is a 1 kg block. This is a 4 kg block. Coefficient of static friction is given as 0.3 and coefficient of static friction is 0.35 and coefficient of kinetic friction, let me give this as 0.4. Coefficient of kinetic friction is 0.3 and we are applying ये यहाँ पे है और ये वाला surface smooth है. Smooth and this is rough. And the external force is here. That is 15 Newton.
Find acceleration of each block and frictional force. Find acceleration of each block and the value of the frictional force. See, those who are solving, ध्यान रखना है कि पहले स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए चेक करना है. स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए कितना आएगा फ्रिक्शन? मैक्सिमम फ्रिक्शन पॉसिबल इज म्यू एस, सॉरी एफएस मैक्स. एफएस मैक्स अगर कैलकुलेट करें तो दैट विल बी कमिंग एज 4 न्यूटन, 0.4 into 10. उसके बाद देन यू विल ड्रॉ द एफपीडी एंड कैलकुलेट इट कि एक्सेलरेशन सेम लेने के बाद फ्रिक्शन सफिशिएंट है कि नहीं एक्सेलरेशन सेम रखने के लिए. अगर एक्सेलरेशन सेम आ रहा है दैट मींस कि स्टैटिक फ्रिक्शन इज विल एक्ट, नॉट काइनेटिक फ्रिक्शन. यहाँ पे दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन पहले सेम अज्यूम किया, दैट इज 1 kg वाले का 10, नॉर्मल फोर्स इज n1. आगे फोर्स फ्रिक्शन लगेगा क्योंकि इस 4 kg वाला साथ ले जाना चाहेगा इसको, और 4 kg वाले ब्लॉक पे इन द फ्रंट फ्रिक्शन इज 15 न्यूटन. फर्स्ट फ्रंट फोर्स इज 15 न्यूटन एंड फ्रिक्शनल फोर्स विल एक्ट नीचे 40 n1 और n2. ऑफ कोर्स इस n1 की वजह से यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा. स्टैटिक फ्रिक्शन अज्यूम किया है, दोनों का एक्सेलरेशन सेम अज्यूम करेंगे. सो F should be equal to 1a and 15 minus this is Fs, static friction. Fs should be equal to 1a and दूसरा रिलेशन आएगा यहाँ से, that is 15 minus Fs should be equal to 4a. यहाँ से Fs की वैल्यू a पुट कर देंगे तो एक्सेलरेशन 3 आ जाएगा. एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बाद Fs की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. सो Fs की वैल्यू यहाँ पे भी 3 आ रहा है और यहाँ पे भी 15 minus 12 that was 3. तो Fs यहाँ से 3 आ रहा है and 3 न्यूटन is less than your maximum वाला. अगर 3 न्यूटन मैक्सिमम से कम है that means your static friction will act, kinetic friction act नहीं करेगा, relative motion नहीं होगा, acceleration same रहेगा. So दोनों ब्लॉक का acceleration will be the same, that is 3 meter per second square. And they are also written the unit wrong, meter per second square लिखना है. But before that you have to check whether की static friction लगेगा या kinetic friction. तो पहले हम assume कर लेते हैं कि static friction लगेगा. अगर जो static friction का maximum value है इससे भी ज्यादा friction required है तब kinetic friction लगाते हैं और फिर solve करते हैं. पर I have a doubt. क्या? अगर डायरेक्टली वो काइनेटिक फ्रिक्शन वाले मेथड से करते हैं और एक्सेलरेशन दोनों का सेम आता है, फिर हम लोग फ्रिक्शन की वैल्यू चेंज कर सकते हैं ना, मतलब म्यू s into 10. सी उस केस में एक प्रॉब्लम ये है, स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा काइनेटिक फ्रिक्शन से ज्यादा या इक्वल होता है. मतलब अगर आंसर यहाँ पे सपोज फ्रिक्शन की वैल्यू यहाँ पे 3 न्यूटन है, 3.5 आता, तो ये assumption the method that you used would be wrong. फ्रिक्शन 3.5 आ गया, एक्सेलरेशन सेम नहीं आता उस केस में. if you are using just kinetic friction, तो इसलिए स्टैटिक फ्रिक्शन यूज करना मस्ट है. ठीक है, ओके सर. तो पहले स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए चेक कर लेना है एक्सेलरेशन सेम आ रहा है और फ्रिक्शन कितना रिक्वायर्ड है. कितना रिक्वायर्ड है, अगर मैक्सिमम से कम है तो फिर स्टैटिक लगेगा, नहीं तो काइनेटिक लगेगा. ठीक है. सो इसी क्वेश्चन में लेट अस से आई एम गिविंग द फोर्स F as 25 न्यूटन, है ना. इसी क्वेश्चन में टेक द नेक्स्ट पार्ट कि F की वैल्यू 25 न्यूटन है, then what will happen? I'll separate this question away.
on this question number 5. Your third question and fourth question is the same question. But here the value of f, that is 25. तो इस केस में टेल में कितना फ्रिक्शन रिक्वायर्ड है और स्टैटिक लगेगा, लग पाएगा या नहीं लग पाएगा. Well, I assume same thing. First, to assume static friction लग रहे हैं और acceleration same. सर ज्यादा आ रहा है. कितना आ रहा है? 5 न्यूटन रिक्वायर्ड है. हाँ सर. एक्सेलरेशन 5 आ रहा होगा, है ना? हाँ सर. अगर स्टैटिक एज्यूम किया तो फ्रिक्शन हाँ सर, रिक्वायर्ड भी स्टैटिक अज्यूम कर. 5 न्यूटन आ रहा होगा. बट हमारा मैक्सिमम हाँ. फ्रिक्शन कितना है? 4. 4. तो ये वाला तो केस स्टैटिक नहीं लगेगा. स्टैटिक नहीं लगेगा, आप काइनेटिक वाला Kinetic. लगाएंगे. तो दोनों में हाँ. अलग अलग एक्सेलरेशन लेंगे और काइनेटिक की वैल्यू चेंज नहीं होती. काइनेटिक की वैल्यू हमेशा एफ के ही लगती है एंड एफ की कैलकुलेट करेंगे तो 0.3 into 10 दैट इज 3 न्यूटन. ठीक है. तो 1 kg वाले पे एफ के आगे लगेगा और 4 kg वाले पे पीछे लगेगा. कितना हो जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ 1 एंड एक्सेलरेशन ऑफ 2? वैष्णवी, इस केस में एक्सेलरेशन कितना आ रहा है? If the force is 25 Newton, what will be the value of A1? A1 is 3. And what is the value of A2? 11/2. 11/2 is correct. Okay. Nirmit, is this clear? Yes, sir. Arjun, is this question clear? Yes, sir. Okay, then solve this one. First this and ये हो जाए तो then second case, question number 6. Assume the force to be 10 Newton. सर हाँ. अगर इक्वल होता है एफ मैक्स से तो फिर स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा. हाँ, इक्वल होगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा. थोड़ा सा भी ज्यादा हुआ तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा. वैष्णवी, what's the value of first tell me, static friction लग रहा है इस केस में या kinetic friction? In question number 5. सर एक्चुअली मैं अभी डिस्कनेक्ट हो गई थी तो मेरा कंप्लीट नहीं हुआ. Okay, okay. Arjun, can you tell me static friction लग रहा है kinetic friction? Sir, kinetic. कितना आ रहा है फ्रिक्शन की वैल्यू जब कैलकुलेट किया था सेम एक्सेलरेशन लेके? तो
तो मेरा हुआ नहीं एक्चुअली पूरा क्वेश्चन, एक्सेलरेशन फाइंड किया है। कितना आ रहा है? सर एक्सेलरेशन 1/2 आया है, 1/2 के एक्सेलरेशन। फर्स्ट वाले का या सेकंड वाले ब्लॉक का? फर्स्ट का 1/2 आया और सेकंड का 3/4। नमन, व्हाट अबाउट यू? स्टैटिक आ रहा है, काइनेटिक आ रहा है? सर स्टैटिक। स्टैटिक आ रहा है, गुड। और एक्सेलरेशन कितना आ रहा है दोनों का? सर एक्सेलरेशन सर उस पहले तो सेम अज्यूम करके किया तो 1 आया। 1 आया। तो उससे फ्रिक्शन कितना आ रहा है? स्टैटिक फ्रिक्शन 4 आया। 4 न्यूटन। 4 न्यूटन लग पाएगा क्या? एफएस मैक्स कितना आ रहा है? हाँ सर एफएक्स मैक्स भी 4 न्यूटन आया है, सेम 4 आया है, न्यूटन लग आया, जाएगा। लग जाएगा। सो काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं लगेगा, इट विल बी स्टैटिक फ्रिक्शन। तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा, दैट विल बी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। निर्मित, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। सर स्टैटिक मान के किया होगा सबसे पहले तो। हाँ तो उस केस में कितना आ रहा है एक्सेलरेशन? सर एक्सेलरेशन अलग आ रहा है दोनों का, मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन। अच्छा, नहीं पहले कैलकुलेट किया होगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगाया होगा हाँ ना फर्स्ट केस में। हाँ, स्टैटिक फ्रिक्शन 6 न्यूटन आ रहा था। 6 न्यूटन रिक्वायर्ड था, तो हाँ एक्सेलरेशन शुड बी 4 न्यूटन। 4 न्यूटन। उस सॉरी केस में 2 आना चाहिए एक्सेलरेशन, हालांकि रिक्वायर्ड नहीं है, गलत ही है एक्सेलरेशन। अश्यूमिंग कि दोनों साथ साथ जा रहे हैं। और 4 न्यूटन ये मैक्सिमम है। 4 न्यूटन मैक्सिमम है। तो मींस काइनेटिक लगेगा। हाँ तो काइनेटिक फ्रिक्शन कितना लगेगा? 3 न्यूटन। 3 न्यूटन, गुड। तो पहले वाले का एक्सेलरेशन कितना आएगा? 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 10 माइनस 3, 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और सेकंड वाले का 3/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 3/4, दैट इज करेक्ट। एक्सक्यूज मी सर, हाँ, सर आई एम नॉट एबल टू कैलकुलेट दिस A1 एंड A2। A1 एंड A2। अच्छा, काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, हमेशा उतना ही रहता है। मैं सेकंड केस के लिए सिर्फ हॉरिजॉन्टल वाला एफईटी ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ पे फोर्स है 10 न्यूटन 1 केजी वाले ब्लॉक पे, और 4 केजी वाले ब्लॉक पे हॉरिजॉन्टल फोर्स होगा सिर्फ फ्रिक्शन वाला फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स की वजह से 4 केजी वाला ब्लॉक आगे मूव करना चाहेगा, और 1 केजी पे 4 केजी वाला ब्लॉक 1 केजी को स्टॉप करना चाहेगा, तो फ्रिक्शनल फोर्स पीछे लगेगा। हाँ सर। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन A1 हो जाएगा, यहाँ पे एक्सेलरेशन A2 हो जाएगा, हाँ है ना। एफ के की वैल्यू 3 न्यूटन का, ये कहाँ से आ गया? एफ के इज इक्वल टू म्यू के इंटू एन। हाँ सर, ये तो मालूम है। हाँ, तो हम लिख सकते हैं एफ माइनस एफ के इज इक्वल टू 1A1 एंड एफ के इज इक्वल टू 4A1 4A2। हाँ यहाँ से A1 A2 आ जाएगा, हाँ एफ 15 है, एफ के 3 है, तो ये 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा, और ये आ जाएगा 3। ओके। या बारहवीं के सारे आंसर्स करेक्ट है। She drew the FET perfectly. She had shown the acceleration. It's really good, na? Okay. Okay, so that was it. So if you have any questions, then you can ask now. अर्जुन, क्वेश्चन नंबर 5 में एक्सेलरेशन अलग अलग नहीं आएंगे, क्वेश्चन नंबर 6 में अलग अलग आएंगे। ओके तो सर। पहले चेक करना है। हाँ, हाँ सर। निर्मित has also solved it correctly. नमन का भी क्वेश्चन नंबर ये वाला, ओके, एफबीटी इज करेक्ट, बट एक्सेलरेशन भी शो करना है किधर है। ओके नमन, इन एफबीटी यू हैव टू शो द एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे A1 ओके में सर। जैसे मैंने सेपरेटली लिखा हुआ है वैसे लिखना है, ठीक है। दैट विल बी ऑल फॉर टुडे।
नेक्स्ट क्लास में हम और क्वेश्चंस करेंगे फ्रिक्शन से रिलेटेड, एंड यू कैन आल्सो स्टार्ट ये चैप्टर नंबर एससी वर्मा का ये वाला चैप्टर हो गया होगा ना, सो नेक्स्ट चैप्टर यू कैन स्टार्ट। आई विल जस्ट सी या चैप्टर नंबर 5 आई थिंक ये सारे क्वेश्चंस कर लिए होंगे, अगर नहीं हुए हैं तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और फ्रिक्शन चैप्टर दैट इज चैप्टर नंबर 6 कैन स्टार्ट दैट चैप्टर फ्रॉम एससी वर्मा। तो स्टार्टिंग के आई वुड सजेस्ट की 10-15 या स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चंस एटलीस्ट इतना करना है, स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चंस। ओके, दैट वुड बी ऑल फॉर टुडे।